temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. Today I'm going to talk on a very important topic, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाला हूं। and it's an area where many people are in bondage. ये तो ऐसा क्षेत्र है जहां पर बहुत से लोग बंधन में पड़े हैं, इसके जुए में जुटे हैं। And Satan has bound many people in something we call addictions. और शैतान ने बहुत से लोगों को बुरी लतों में या कहिए बुरी आदतों में, बुरे एडिक्शन में बांध कर रखा है। It's a thing where people are bound by certain habits and evil things which they're not able to get out of it. और इसका मतलब ये है कि लोग तो बहुत सी बुरी आदतों में, बुरी लतों में पड़े हैं और वो उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। So the topic I'm going to talk about is how to be free from addictions. और आज मैं आपको इसी विषय पर बताऊंगा कि कैसे हम बुरी लतों से आजाद हो जाएं। There are many people watching. I'm sure you know in your own life if there are certain things which you are addicted to. बहुत से लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप खुद अपने जीवन में जानते हैं कि आप ऐसी बहुत सी चीजों के आदी हो चुके हैं। The Bible says in 2 Peter chapter 2 verse 19. बाइबल कहती है दूसरा पत्रस अध्याय 2 वचन 19 में, For what or of whom a man is overcome, of the same thing he is brought into bondage. क्योंकि जो व्यक्ति जिसके द्वारा या जिससे हार गया है वो उसका दास बन जाता है। In another translation it says, they are slaves to destructive habits, for a person is a slave of anything that has conquered him. और एक और अनुवाद कहता है कि वो विनाशकारी आदतों के गुलाम हो चुके हैं। हर एक व्यक्ति जिसे किसी चीज का आदी होता है वो उसका दास हो जाता है। Some things which conquer you and which you're not able to break free, it becomes an addiction. जिन चीजों ने आपके ऊपर जय पाई है और आप उससे आजाद नहीं हो सकते हैं, वही तो आदत हो Many जाती है। addictions are very obvious to everybody. आज तो जो बुरी लत है हर एक व्यक्ति के लिए बिल्कुल सामान्य सी बात हो गई है। Like you see people who are addicted to alcohol, every day they are drunk and everyone can see it. और जैसे कुछ लोग शराब के आदी हैं, हर एक दिन शराब पीते हैं और हर कोई उन्हें देख सकता है। Some people are addicted to drugs. कुछ लोग तो ड्रग्स के आदी हो चुके हैं। Some are addicted to gambling. कुछ लोग तो जुए के आदी हो चुके हैं। All the time they will be spending all their money gambling and losing all their money. और हर समय बस अपना पैसा जुए में लगाते रहते हैं और सारा पैसा खो देते हैं। Some are addicted to smoking. They keep on smoking. They become chain smokers. They die of cancer and all sort of problems. और कुछ लोग तो सिगरेट पीने के आदी होते हैं, बस हमेशा सिगरेट पीते रहते हैं और कैंसर जैसी समस्याओं से मर जाते हैं। वो सच में इसके आदी होते हैं और फिर मर जाते हैं। There are addictions which are open to everyone. Everyone can see it. ये ऐसी आदतें हैं जो सभी देख सकते हैं, सभी के सामने खुली होती हैं। But there are some addictions which no one can see. लेकिन ऐसी कुछ बुरी लतें होती हैं जिन्हें कोई नहीं देख सकता है। You know it yourself. और आप खुद उससे जानते हैं। You know that you can't control those addictions. आप जानते हैं कि आप उन बुरी लतों पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। In these times we have so much of chances to fall into addiction. और इस समय में तो बहुत से मौके अवसर है कि हम इस तरह की बुरी लतों में गिर जाएं। One of the strong areas is the internet. और इसमें एक बहुत ही मजबूत जो है वो है इंटरनेट। Majority of young people and even older people, not only young people, even older people, they are addicted to pornography on the internet. बहुत से लोग जो है, जवान लोग, और यहाँ तक कि जवान ही नहीं लेकिन जो बूढ़े हैं, वयस्क लोग हैं, वो भी इंटरनेट के ऊपर अश्लील चीजें देखते रहते हैं, उसके आदी हो चुके हैं। And because of what, so initially it looks just like, okay, I'll just see once. देखिए शुरू में तो ये ऐसा होता है कि ठीक है मैं इसे एक बार ही देखता हूँ। And it becomes so interesting, they say, let me see once more. और फिर ये और दिलचस्प हो जाता है, फिर वो कहते हैं ठीक है मैं इसे एक और बार देखता हूँ। And it becomes slowly, you can't get out of it. It grips you. और धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि आप उससे बाहर नहीं आ सकते, या आपको पूरी तरह से जकड़ लेता है। And people get into all bad sexual habits. और लोग जो हैं वो हर तरह से बुरी शारीरिक अभिलाषा की आदतों में पड़ जाते हैं। And they'll be, stimulating themselves habitually. और वो अपने आप को आदतन इस तरह से
उत्साहित करते चली जाती हैं। And the thought life will be going in that direction because they're watching all the evil things. They start practicing those things outside. और उनके विचार की जो धारा है वो उसी तरफ जाती है, क्योंकि वो उसे देखते रहते हैं और फिर उसी में काम करते हैं, वो उसी के आदी हो जाते हैं। Every day you open the papers, you find people doing evil things, gang raping and all sort of terrible things are happening because of this addiction. देखिए, आज आप अखबार खोलिए, आप देखेंगे कि लोग बुरे काम कर रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं। ये सब कुछ इन बुरी आदतों के कारण ही तो होते हैं। ये सारी पाप की बातें इन बुरी आदतों के कारण होती हैं। And people have dirty pictures on their computers, on their mobiles, and they keep on enjoying that filthy things. It leads to evil thoughts and evil desires. और लोग जो है गंदे चित्र अपने कंप्यूटर में रखते हैं, अपने मोबाइल पर रखते हैं, उसे बार बार देखते हैं। इस तरह से उन बातों का वो आनंद लेते हैं, मजा लेते जाते हैं। There are other addictions like excessive TV watching, all the time watching TV, movie after movie, serial after serial, continuously hours on the TV. और फिर दूसरी भी बुरी लतें हैं, वो है ज्यादातर टीवी देखना, यानी वो बस टीवी देखते रहते हैं, एक फिल्म के बाद फिल्म या फिर सीरियल के बाद सीरियल ऐसे देखते रहते हैं। Oh, there are many addictions which will control you. Anything which becomes an obsession becomes an addiction. देखिए, बहुत सी चीजें इस तरह से आप पर नियंत्रण करती है। हर एक ऐसी चीज जिससे आप बाहर नहीं आ सकते हैं, वो आपके लिए बुरी लत हो जाती है, वो दास हो जाते हैं। Things which you cannot control yourself. You feel a urge to keep on doing it. That's an addiction. ऐसी चीज जिस पर आप नियंत्रण नहीं कर सकते, आपको ऐसा लगता है कि आपको वो करते चले जाना है, वो बुरी लत है, बुरी आदत है। It always starts with just a very small casual encounter. ये तो हमेशा बहुत ही साधारण ऐसी छोटी सी मुलाकात से बात शुरू होती है। Let me just try one cigarette चलो मैं एक सिगरेट की कोशिश करके देखता हूँ, or just one glass of alcohol. बस एक ग्लास शराब पीकर Let me देखता see how हूँ, it is. चलो मैं देखता हूँ ये है क्या। Or my friends are taking drugs. Let me just try one drug and see. या फिर मेरे दोस्त ड्रग्स लेते हैं, तो चलो मैं एक बार ड्रग्स लेकर देखता हूँ। Or let me just see one blue movie. या फिर मैं एक अश्लील फिल्म देखूं। It just starts with just an interest. देखिए, ये सब जो है ये केवल दिलचस्पी से शुरू होता है, छोटी सी दिलचस्पी से शुरू होता है। And when they see that, it starts attracting them. Oh, they start enjoying it. और फिर जब वो उसे देखते हैं, वो उन्हें आकर्षित करता है, वो उसका आनंद उठाना शुरू कर देते हैं। And after some time, they'll go back to it again. और फिर कुछ समय के बाद वो उसी में वापस जाते They हैं, got a pleasure out of it. वो उसमें से आनंद उठाना शुरू करते हैं, And they want the pleasure again and again. और फिर वो ये आनंद बार बार चाहते हैं। They don't realize वो इस बात को नहीं जानते that हैं it's a very slippery downward slope. कि ये तो फिसलने वाला ऐसा नीचे जाने वाला मार्ग है। They start slipping down. वो नीचे फिसलते जाते हैं। They don't realize. They think, oh, I can stop it whenever I want. वो ये नहीं जानते, सोचते मैं जब भी चाहूं इसे रोक दूंगा। I'm not in bondage yet. मैं अब तक इसके बंधन में नहीं It's आया just a हूं। casual affair. I'm just doing once in a while. ये तो बिल्कुल साधारण do सी it. बात है, कभी कभार मैं इसे कर लेता हूँ, मुझे इसकी आदत नहीं है, मैं इसकी लत में नहीं हूँ। You are just deceiving yourself. You are going down the path. You're deceiving yourself. आप खुद को धोखा दे रहे हैं, आप इस रास्ते से नीचे फिसलते जा रहे हैं, खुद को धोखा देते And हैं। before you know it, और इसके पहले कि आप इसे जाने, you are totally caught in a net. आप पूरी तरह से जाल में फंस जाते हैं। Satan puts a net around you. शैतान आपके आसपास एक जाल रखता है। One thing you have to realize, एक बात आपको जाननी behind होगी, every addiction, हर एक बुरी लत, there is a devil, demon or an evil spirit drawing you into it. देखिए उसके लिए एक दुष्टात्मा है जो आपको मानो उसके अंदर खींच के The लेकर plan आती of है। Satan is to destroy your life. शैतान की योजना यही है कि आपके जीवन को वो नाश कर दे। All of us who are born into this world, हम सब लोग जो इस संसार में जन्म लिए हैं, there is a battle for your soul. आपके प्राण के लिए एक युद्ध है। For your soul, there is a battle. आपके प्राण के लिए एक युद्ध है। The devil is trying to destroy you, शैतान आपको नाश करने की कोशिश कर रहा है, and God wants to save your life. और परमेश्वर आपके जीवन को बचाना This चाहता battle है। is going on for your soul. और आपके प्राण के लिए ये युद्ध तो हमेशा चलता है। And you are born into the world, you come into that battle. और जबकि आप इस संसार में जन्मे हैं, आप अपने आप इस युद्ध में जुड़ जाते हैं। If you are born into this world, you come into this battle. यदि आप इस संसार में जन्मे हैं तो आप इस युद्ध में जुड़ जाते हैं। There is a battle for every soul. हर एक प्राण के लिए एक युद्ध होता है, And Satan wants to destroy you. और शैतान आपको नाश करना चाहता He has है। many ways to destroy you. उसके पास आपको नाश करने के बहुत से तरीके हैं। One of the ways he does it very commonly is to get you into addictions to evil habits. और एक बहुत ही साधारण तरीके से ये करता है कि आपको बुरी लतों के, बुरी आदतों के वश में लेकर आता है। So many traps he puts along the way. और इस मार्ग में वो बहुत से जाल बिछा कर रखता है।
And people who are not careful, they just fall into those traps. और जो लोग सावधान नहीं हैं वो बस इस जाल में फंस जाते हैं। The Bible says बाइबिल कहती है about Satan, शैतान के बारे में, calls him a thief. Jesus calls him the thief. उसे वो चोर कहती, यीशु से चोर कहता है। He says the thief comes to steal and kill and destroy. वो कहता है कि चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है। He wants to steal your joy, steal your happiness. वो आपके आनंद को, वो आपकी खुशी को चुराना चाहता है। He wants to kill you and destroy you. वो आपको घात करना चाहता है, नाश करना चाहता है। And if you look at how many people are destroyed because of evil habits and evil addictions, they are destroyed. Their life is destroyed. अगर आप देखें कि कितने तो भी लोग जो है बुरी आदत के कारण, बुरी लतों के कारण नाश हुए हैं, उनका जीवन पूरी तरह से नाश हो गया है। And how many families you find the husband is always drinking and is drunk every day? What a mess of the family. और कितने तो भी परिवार में आप देखते हैं कि पति जो है हमेशा पीते रहता है, पूरा परिवार बड़ी गड़बड़ी में पड़ा हुआ Using है। all the money for his drink. वो सारा पैसा अपनी शराब में उड़ा देते हैं। And his children don't have money for food and for clothes and for education. There's nothing. He's drinking up everything. और उसके बच्चों के पास में खाने के लिए, पढ़ाई के लिए, कपड़ों के लिए पैसे नहीं होते हैं। पिताजी सारा पैसा शराब में उड़ा And he'll देते come and हैं beat his wife. और वो आकर अपने पत्नी को Oh, मारते how many हैं। families are suffering like this? देखिए कितने परिवार इस तरह से दुख उठा And how रहे many हैं। children getting into drugs and the parents are watching their children addicted to drugs and their heart is broken. और कितने तो भी बच्चे जो हैं वो ड्रग्स के आदी हो रहे हैं। माता पिता देखते हैं अपने बच्चों को इस आदत में और उनका दिल टूट जाता है। School, they think it's a big fashion to have a cigarette in the hand. और स्कूल में इस तरह से सोचा जाता है कि हाथ में सिगरेट रखना तो एक बहुत बड़ा And it फैशन है। leads to deeper and deeper things and you'll go into drugs. और ये तो आपको गहरे और गहरी बातों में ले जाता है और आखिर में आप ड्रग्स में गिर जाते हैं। That demon which is behind that addiction will pull you and pull you like a net, like with a rope, till finally you end up in hell. और इस तरह की जो बुरी आदतें, उसके पीछे जो दुष्ट आत्मा है, मानो आपको रस्सी से नीचे और नीचे खींचती जाती है और आखिर में आपको नरक में गिरा The देती end है। of every addicted person is hell, because no person with addiction will go to heaven. हर एक नशे के आदी व्यक्ति का अंत तो केवल नरक है, क्योंकि इस तरह का कोई व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जा सकता है। God's place is a very holy place. Heaven is holy. परमेश्वर की जगह पवित्र जगह है। No sin will enter in heaven. कोई पाप स्वर्ग में नहीं जा सकता है। In Revelations 21 and verse 27, it says, प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 27 में ये it's कहता talking है, about the city of God, heaven. और ये तो परमेश्वर के नगर स्वर्ग के बारे में कहता है। And there shall in no wise enter into it anything that defiles, neither whatever works abomination or makes a lie, but only those who are written in the Lamb's book of life. परंतु उनमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। The Lamb means Jesus Christ. मेमने का मतलब यीशु मसीह है। He has a book, उसके पास एक किताब है, the book of life. जीवन की किताब है। Those names who are written in the book of life, they only will be in heaven, not the others. जिन लोगों के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, केवल वही स्वर्ग में जाएंगे, बाकी कोई नहीं जाएगा। And if you are in addiction to evil habits, your name will not be in the book of और life. अगर आप बुरी आदतों की लत में हैं, तो आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं रहेगा। So it's very vital that you need to come out of addictions, और इसलिए बहुत ही जरूरी है कि आप इन बुरी लतों से बाहर आ जाएं, because this addiction will kill you. क्योंकि ये बुरी आदतें आपको मार Not only देगी। kill you, it will destroy your family. और केवल आपको मारेगी नहीं, ये आपके परिवार को नाश कर Your देगी। parents will be in such sorrow. आपके माता पिता बहुत दुख में होंगे। If you are a married person, your family is destroyed. अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं तो आपका परिवार नाश हो जाएगा। Realize there is a demon behind it trying to destroy you. इस बात को जान ले कि इसके पीछे दुष्ट आत्मा है जो आपको नाश करने की कोशिश कर रही है। वो आपको खत्म करना चाहती है। Why are people not able to come out of their addictions? What is the reason? लोग अपनी बुरी लतों से क्यों बाहर नहीं आ पा रहे हैं? इसके पीछे कारण The क्या reason है? is कारण तो यही the है, people love that addiction. लोग उन बुरी लतों से प्यार करते हैं। They love that habit. वो उन आदतों से प्यार करते हैं। They enjoy the drug. वो उस ड्रग्स का आनंद उठाते हैं They have such happiness. That's what they think. और वो सोचते हैं कि उनके पास इतनी ऐसी खुशी है। बस ये सोचते हैं। देखिए उन्हें लगता है कि वो बहुत खुश है। They enjoy watching those evil pictures on the internet. इंटरनेट पर वो बुरे चित्र देखना बहुत उसका आनंद उठाते हैं, मजा लेते हैं। It gives them such a kick every time that they don't want to leave it. और वो हमेशा इससे इतना जोश पाते हैं कि वो इसे छोड़ना नहीं चाहते। The person who wants to be free from addiction should first decide what do you love more. और जो व्यक्ति बुरी लतों से आजाद होना चाहता है, वो सबसे पहले निर्णय ले कि वो सबसे ज्यादा किससे प्यार करता है। Do you want to be free of it and then have fellowship with God and have heaven in the end,
or do you want to enjoy that addiction and go to hell? What is important to you? क्या आप उसके साथ में संबंध रखना चाहते हैं, उसका आनंद उठाना चाहते हैं, या फिर आप परमेश्वर के साथ में संगति रखकर उसकी उपस्थिति में रहकर उसका आनंद उठाना चाहते हैं? पहले निर्णय ले लें। In the book of John chapter 3 and verse 19, यूहन्ना अध्याय 3 वचन 19 में it gives the reason why people don't want to come out of addiction. They don't want to escape from it. ये कारण बताता है कि लोग क्यों बुरी लतों से बाहर आना नहीं चाहते हैं, वो उससे निकलना नहीं चाहते हैं। It says, and this is the condemnation, that light has come into the world, but men love darkness more than the light, because their deeds were evil. ये कहता है दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम And बुरे verse थे। 20 says, for everyone that does evil hates the light, and neither comes to the light, lest his deeds should be exposed. क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। But it says in verse 21, but he that does the truth comes to the light, that his deeds may be manifest, that they are wrought in God. परंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वो परमेश्वर की ओर से You किए have गए to हैं। decide whether you want to come to the light or you want to maintain the darkness. आपको ये निर्णय लेना है कि आप ज्योति में आना चाहते हैं या फिर आप अंधकार में ही बने रहना चाहते हैं। The pleasures that you get from your addiction is for temporary, it doesn't give you everlasting pleasure. देखिए, आपकी बुरी लतों से आपको जो आनंद मिलता है वो थोड़े समय का है, वो अनंत काल का आनंद नहीं देता है। You take alcohol and you're drunk for how many hours? After few hours you're again awake and again you get a headache and you drink once again. It doesn't satisfy. और क्या होता है, अगर आप शराब पीते हैं तो कुछ समय तक आपको नशा होता है, फिर जब नशा उतर जाता है तो सिर दर्द होता है, फिर से आप जाकर शराब पीते You come हैं। out of your drug, the high that you get, again you have to take back the drug because you want to maintain that level. You cannot, it's not permanent. और अगर आप किसी तरह से ड्रग्स लेते हैं तो आप वहां पर उस नशे को महसूस करते हैं और जब वो उतरने लगता है तो आप फिर से लेते हैं। ये हमेशा का नहीं है। None of these things will give you a permanent satisfaction. इनमें से कोई भी चीज आपको हमेशा का आनंद नहीं देगी। But I tell you one thing. लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, If you come to the light, if you are desirous to be free and you come to know Jesus, you will have such a peace. No drug, nothing can compare with it. अगर आप ज्योति में आते हैं और सच में आप उस समय ऐसे एक आनंद का आप अनुभव करेंगे, कोई भी ड्रग्स की तुलना में कुछ नहीं। God will give you such deep peace that you won't need those things again. परमेश्वर आपको ऐसी गहरी शांति देगा कि आपको उन सारी चीजों की फिर कभी जरूरत नहीं होगी। Jesus said, यीशु ने कहा, peace I give unto you. मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, Peace I live with you. शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूँ। Not as the world can give you. ये ऐसी शांति नहीं जो संसार तुम्हें देता है, Do not be afraid. इसलिए भयभीत ना हो। Jesus will give us such a peace that nothing can satisfy, nothing else can satisfy. यीशु हमें ऐसी शांति देता है कि संसार में बाकी कोई भी चीज हमें संतुष्टि नहीं दे सकती है। But you must decide what do you love more. लेकिन आपको निर्णय लेना है कि आप किससे ज्यादा प्यार करते If you हैं। want to be free of an addiction, यदि आप किसी बुरी लत से आजाद होना चाहते हैं, whatever it be, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, don't say this is impossible, I can't get out. Don't say that. आप ये न कहें ये तो असंभव है, मैं इसमें से बाहर नहीं आ सकता हूँ। Everyone can be set free if they have a sincere desire and they come to the truth, they can be set free. हर एक व्यक्ति आजाद हो सकता है अगर उनमें बड़ी इच्छा है और वो सत्य को जाने तो आजाद हो सकते हैं। There is only one solution and that's found in Jesus Christ. और केवल एक ही हल है इसके लिए और वो यीशु मसीह में पाया जाता We है। just read that the light came into the world, but men loved darkness more than the light. हमने अभी वचन में पढ़ा कि संसार में जगत में ज्योति आई, लेकिन मनुष्य ने अंधकार से ज्यादा प्यार That light किया। was Jesus Christ. वो ज्योति तो प्रभु यीशु मसीह है। Whoever comes to that light, जो भी इस यीशु मसीह के पास आता है, ज्योति के पास आता है, whoever wants to leave the darkness behind, जो भी अंधकार को पीछे छोड़ना चाहता है, you can be set free. आप आजाद हो सकते हैं। There is no addiction which Jesus cannot break. ऐसे कोई बुरी लत नहीं है जिसे यीशु तोड़ नहीं सकता है। He took all your sins and your addictions upon himself. He bore the punishment for it. उसने आपके सारी बुरी लतों को, सारे दंड को अपने ऊपर में ले लिया। उसने आपके सारे दंड को अपने ऊपर ले लिया And he wants to set you free. और वो आपको आजाद करना चाहता है। He doesn't want you to be destroyed because of your addiction. वो नहीं चाहता कि आप अपनी बुरी लत के कारण नाश हो जाए, But the choice is yours. लेकिन चुनाव तो आपका है। Do you want to be free or not? क्या आप आजाद होना चाहते हैं या नहीं? If you are sincere, यदि आप ईमानदार हैं, if you are truthful, अगर आप सच्चे हैं, if you come to the Lord and say, Lord, set me free, अगर आप प्रभु के पास आते कहते प्रभु तू मुझे आजाद कर दे, you will be free. तो आप आजाद हो जाएंगे।
You may have been addicted for many years. शायद हो सकता है कि आप बहुत साल तक बुरी लतों की You may आदत have में been हो deep in addiction. और आप गहराई से चले गए इन लतों में। You know what happens when people keep on doing these evil things and evil spirits enter their life. अब क्या होता है जब लोग इन तरह की बुराई के काम को करते हैं तो दुष्ट आत्मा उनके जीवन में आ जाती है। You do practice your addictions. You are opening the doors in your life for the evil spirits to enter. और जब आप इस तरह की बुरी लतों में काम करते जाते हैं तो दुष्ट आत्मा आपके जीवन में चली जाती है, वो काम करती है। And when these evil spirits enter your life, और जब ये दुष्ट आत्मा आपके जीवन में प्रवेश करती है they now start compelling you to do it. और You वो are अभी आपको compelled. विवश करती जाती है कि आप इन सारे कामों को करते चले जाएं। They'll push you. वो आपको धक्का देते हैं And it will no longer be that you are just trying it. It is like that you are unable to control, that you are under pressure. अब ये ऐसा नहीं कि बस आप इसकी कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप इस पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, जैसे मानो आप उसके दबाव में होते हैं। Because you have opened the doors for the evil spirits to enter your life. क्योंकि आपने द्वार खोला है कि आपके जीवन में सारी दुष्ट आत्माएं प्रवेश कर Even सके। if that has happened, और चाहे अगर ये भी हो जाया है God can still set you free. लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको आजाद कर सकता है। Jesus can drive out those devils from your life. यीशु आपके जीवन से उन सारी दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है। He can restore your family. वो आपके परिवार को फिर से जोड़ सकता There है। are so many people I know who have come out of alcoholism. They used to be lying on the roads, drunk and lying on the roads, hopeless, addicted to alcohol. मैं जानता हूँ बहुत से लोग शराब की लत से बाहर आ गए हैं। वो तो पहले शराब पीकर सड़कों पर पड़े रहते थे And they have been able to leave that, and now they are serving the Lord Jesus Christ. और वो अभी इन सारी बातों को छोड़ सके हैं और अभी प्रभु की सेवा कर रहे हैं। पहले तो वो शराब पीकर सड़कों पर पड़े रहते थे। There are even medically, we doctors cannot treat certain addictions. They say, no, we can't treat them. They are so addicted, their mind is changed. और मेडिकल डॉक्टर जो है वो कहते हैं कि हम इन्हें बदल नहीं सकते, ये इतने लत में चले जा चुके हैं कि इनका मन बदल Oh, गया they will है। be giving this drug to that drug to control the other drug, and it doesn't work. और वो ये दवाई देते हैं, वो दवाई देते हैं ताकि उन पर नियंत्रण कर सके, लेकिन कुछ काम नहीं करता। Because there's an evil spirit inside, and you don't treat evil spirits with medicines. और क्योंकि अंदर में दुष्ट आत्मा है और आप दवाइयों से दुष्ट आत्मा का उपचार नहीं कर सकते हैं। Only Jesus can break that addiction. केवल यीशु ही उन बुरी लतों को तोड़ सकता है। Only in His name that devils will be cast out. केवल उसके नाम में दुष्ट आत्माएं निकाली जा सकती है। No man can do it for you. कोई मनुष्य इसे नहीं कर सकता, Jesus can do it for you. केवल यीशु ही आपके लिए कर सकता Why है। don't you decide today? क्यों न आज आप ये निर्णय ले ले, I want to be free of this addiction. मैं इन बुरी लतों से आजाद होना चाहता हूँ। Why don't you realize that your addiction is leading you to hell? आप क्यों इस बात को नहीं जानते हैं कि आपकी बुरी लतें आपको नरक में लेकर जा रही हैं? Why don't you turn towards the light, and the light is Jesus? आप क्यों न उस ज्योति की ओर चले जाए और वो ज्योति तो यीशु मसीह है। Don't remain in darkness, आप अंधकार में न रहें, because your life is messed up. क्योंकि आपका जीवन पूरी तरह से गड़बड़ी में है। You know that your life is messed up, आप जानते हैं कि आपका जीवन पूरी तरह से गड़बड़ी but में there है, is hope for you. लेकिन आपके लिए आशा है। Turn to Jesus. यीशु मसीह के पास आए। He is the only way to set you free. आपको आजाद करने के लिए केवल वही एक मार्ग है। Why don't you take the first step today? क्यों ना आज आप ये पहला कदम उठा लें, Commit your life to Jesus. अपना जीवन प्रभु यीशु को दे दें। That's the first step in being free. ये तो आजाद होने का पहला कदम है। If you come to know the Lord Jesus Christ, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं you have stepped from darkness into light. तो फिर आप अंधकार से निकलकर ज्योति में आ And गए once you हैं। come into the light, और एक बार जब आप ज्योति में आते हैं all these things will break off. तो ये सारी चीजें टूट जाती हैं, Because in His glory, in the light of Jesus Christ, no bad things can remain. क्योंकि उसकी महिमा में यीशु की ज्योति में कोई भी बुरी चीजें नहीं रह सकती हैं। But you must come with a full heart. लेकिन आपको पूरे दिल के साथ में आना होगा। Sincerely say, Lord, I want to be free. बड़ी ईमानदारी से आपको कहना होगा, प्रभु मैं आजाद होना चाहता हूँ। I'm coming to you because I want to be free. मैं तेरे पास में आता हूँ क्योंकि मैं आजाद होना चाहता हूँ। If you have that hunger, अगर आपके पास में ये भूख है this is the first step you must take. तो आपको ये पहला कदम उठाना होगा। Commit your life to Jesus. अपना जीवन यीशु को Will दे you do it दें। now? अभी इसी समय करें। And then we'll continue next week. I'll teach you all the other steps of getting free. और अगले हफ्ते मैं आपको बताऊंगा आजाद होने के अगले कौन से कदम हैं। Pray with me sincerely now. मेरे साथ में अभी ईमानदारी से प्रार्थना कीजिए। Get on to your knees अपने घुटनों पर आ जाएं and lift up your hands और to अपने Jesus. हाथ यीशु की ओर ऊंचे उठाएं। Say, Jesus, यीशु, I need deliverance. मुझे छुटकारा चाहिए। I've been in bondage all this time to this addiction. मैं अब तक इन बुरी लतों के आदत में बंधन में रहा हूँ।
I want to be free. मैं आजाद होना चाहता हूँ। I believe you died on the cross for me. मैं विश्वास करता हूँ तू मेरे लिए क्रूस पर मरा है। My sins were put upon you. मेरे पाप तेरे ऊपर लाद दिए गए। You alone can set me free from केवल तू addiction. ही मुझे मेरी सारी बुरी लतों से आजाद कर सकता Set me है। free, Lord Jesus. मुझे आजाद कर प्रभु यीशु। Forgive my sin. मेरे पापों को माफ Come कर। into my life. मेरे जीवन में आ जा। From today I want to follow you. आज से आगे मैं तेरे पीछे I चलना want to be चाहता हूँ। free from this addiction. मैं इन बुरी लतों से आजाद होना I चाहता believe you हूँ। can set me मैं free. विश्वास करता हूँ तू ये कर सकता है। Make me your child. मुझे अपनी संतान बना। Come into my heart. मेरे दिल में आ जा। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमेन। If you have prayed that prayer अगर आपने ये प्रार्थना की है sincerely, ईमानदारी से, with the real desire, सच्ची इच्छा के साथ, you have taken the first step to your freedom. तो आपने अपनी आजादी की ओर पहला कदम उठा लिया है। There is hope for you. आपके लिए आशा है। Never think that your condition is hopeless. आप कभी ये न सोचे कि आपकी दशा बिल्कुल आशाहीन है। There is hope. बिल्कुल आशा है। Come again next week, and I'll continue this topic. अगले हफ्ते फिर से जुड़ जाएं और इस विषय पर हम आगे देखते चले जाएंगे। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Let my heart be the temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace.